لیاری میں سیوریج کے مسائل حل ہونے کی امید. جالے میئر نے بکرا پیڑی میں پمپنگ سٹیشن کا افتتاح کر دیا. مرتضی وہاب نے اگست تک شہر میں مزید 40 ملین گیلن یومیہ پانی لانے کی نوید بھی سنا دی. شعیب مختار کی رپورٹ دیکھیے. کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے لیاری بکرا پیڑی میں سیوریج پمپنگ اسٹیشن کا افتتاح کر دیا. افتتاحی تقریب سے خطاب میں مرتضی وہاب بولے، کراچی کی ترقی کا سفر بلاول بھٹو کے تیر کے نشان کے تحت شروع ہوا. ترقی کا بہتری کا سفر جو کراچی شہر میں تیر کے تحت بلاول بھٹو زرداری صاحب کے تیر کے تحت پیپلز پارٹی کے منشور کے تحت سٹارٹ ہوا ہے، جس کے اندر چاہے میئر ہو، ڈپٹی میئر ہو، ہماری یو سی کے چیئرمین ہو، ٹاؤن کے چیئرمین ہو، وائس چیئرمین صاحبان ہو، ہمارے وزراء ہو، ایم این اے ایم پی اے ہو، ہماری تنظیم ہو، ہم سب کے سب اسی طریقے سے اپنے کراچی کی عوام کی خدمت میں مصروف رہیں گے. مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ روڈ کٹنگ کی مد میں لیاری ٹاؤن کے پاس 1.25 ارب روپے آئے ہیں، جسے سڑکوں کی تعمیر پر لگایا جائے گا. لیاری کے پانی کی چوری کو روکیں گے. کہ جو روڈ کٹنگ کی مد میں تقریباً کوئی 1 ارب 1.25 ارب روپے لیاری کے پاس آئے ہیں، ان پیسوں سے کراچی کی لیاری کی جو گلیاں خراب کر دی گئی ہیں اس روڈ کٹنگ کی وجہ سے، ان گلیوں کو ریہیبلیٹیٹ جلدی کیا جائے گا. جو ایلیویٹڈ سٹرکچر ہے وہ ڈلنا شروع ہو گیا ہے. اس پروجیکٹ کے ذریعے جو لیاری کا پانی چوری ہو رہا تھا، اس چوری کو ہم بچا پائیں گے، اس کی روک تھام کر پائیں گے، اور وہ پانی انشاءاللہ لیاری والوں تک پہنچا پائیں گے. میئر کراچی نے غیر قانونی تعمیرات کی روک تھام کے لیے جلد وزیر بلدیات سے بات کرنے کا بھی عندیہ دیا. کیمرامین حارث علی کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21. جمہوریت کے ثمرات عام آدمی تک پہنچانا ہوں گے. گورنر کامران خان ٹیسوری کا یوتھ پارلیمنٹ سے خطاب. بولے، روزگار، بجلی، گیس، پانی کی فراہمی حکومت کا کام ہے. سید زبیر راشد کی رپورٹ دیکھیے. گورنر ہاؤس میں یوتھ پارلیمنٹ کی تقریب. احمد بلال محمود کی سربراہی میں 70 رکنی وفد شریک ہوا. تقریب سے خطاب میں گورنر محمد کامران خان ٹیسوری نے کہا کہ معاشی اور معاشرتی حالات کا سامنا ہم برسوں سے کر رہے ہیں. بلوچستان کے ذخائر کے چوتھائی حصے سے ملکی قرض ختم کیا جا سکتا ہے، جس سے معیشت بہتر ہوگی. آپ کے پاس بلوچستان میں ذخائر کی کمی ہے؟ آپ کے پاس کون سی ایسی وہاں معدنیات نہیں ہے؟ سونا تو چاندی تو کاپر، ہر چیز ہے نا. آ جائیں، بیٹھ کے کیلکولیٹر رکھتے ہیں، اس کے 1/4 سے پاکستان کا قرضہ ادا ہو سکتا ہے. اسی لیے تو بلوچستان میں جب کوئی انویسٹمنٹ کرنے جاتا ہے تو دھماکے شروع ہو جاتے ہیں. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ دھماکے کرانے والا کون ہے. کامران ٹیسوری نے کہا کہ جمہوریت کے ثمرات عام آدمی کے دہلیز پر پہنچانا ہوں گے. روزگار، بجلی، گیس، پانی کی فراہمی حکومت کا کام ہے. میرے نزدیک اصل جمہوریت وہ ہوتی ہے جس کے ثمرات ایک عام شخص کو اس کی دہلیز پر ملیں. آپ اور ہم جس چیز کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، یہ تو ہمارا حق ہے. آپ حق کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اگر کسی کے پاس روزگار نہیں ہے تو یہ حکومت کا کام ہے کہ اس کے مواقع فراہم کرے. اگر ہمارے پاس بجلی، پانی، گیس علاقوں میں نہیں آ رہا تو یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ دیں. گورنر سندھ نے کہا کہ آرمی چیف نے معیشت کے استحکام کے لیے SIFC منصوبہ بنایا، جو کہ ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے گی. کیمرامین شادب رضا کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21. سپریم کورٹ کے جسٹس منظور علی شاہ نے کراچی بار کو 9 منتخب کابینہ سے حلف لے لیا. بولے، مجھے سینئر پیونی جج پکارا جائے، میں اسی میں خوش ہوں. تفصیلات جواد آصف کی رپورٹ میں دیکھیے. میں کراچی بار ایسوسی ایشن کی حلف برداری کی تقریب. سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ نے 9 منتخب کابینہ سے حلف لیا. سندھ بار کونسل کے وائس چیئرمین کاشف حنیف، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر بیرسٹر سرفراز علی میتلو اور جنرل سیکریٹری مرزا سرفراز بھی شریک ہوئے. تقریب سے خطاب میں جسٹس منصور علی شاہ نے کہا، مجھے سینئر پیونی جج پکارا جائے، میں اسی میں خوش ہوں. ایک چیز ویسے میں کہنا چاہتا ہوں بیفور اوتھ کہ دیکھیں، ہم نے چیزیں آگے لے کے چلنی ہیں. ہمارے چیف جسٹس ہیں، میں سینئر چیف پیونی ہوں، میں اس میں بہت خوش ہوں. میں سینئر پیونی جج ہوں، میں بہت خوش ہوں، اور اللہ ہے.
कराची बार के सदर आमिर नवाज वराइस का कहना था कि हमें कहा गया कि बात नहीं करो, लेकिन हम करते रहेंगे। पीका एक्ट से मीडिया के लोग मुतासर होंगे। हमसे रिक्वेस्ट थी कि बात ना की जाए, अगर हम बात नहीं करेंगे तो फिर बार एसोसिएशन भी बार एसोसिएशन नहीं रहेगी। पीका ऑर्डिनेंस पास हुआ तो पीका के दोस्त परेशान खड़े हैं कि ये जो हम ऑर्डिनेंसेस को चैलेंज किस जज के सामने करें। जहाँ पर भी लेके जाएंगे इंशाल्लाह डिसमिस ही होगा, तो बेहतर है चैलेंज करें या ना करें। एक नया बिल पेश होने जा रहा है लॉयर्स के खिलाफ कि भाई जो भी वकील प्रोटेस्ट करेगा उसका भी लाइफ टाइम लाइसेंस जो है कैंसिल हो जाएगा। कराची बार की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह को सिंधी अजरक और टोपी का तोहफा भी पेश किया गया। तकरीब में वकला और डिस्ट्रिक्ट जजेस ने शिरकत की। कैमरामैन कमर आब्दी के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। MQM पाकिस्तान सिंध हुकूमत पर बरस पड़ी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि 15 सालों से सूबे में जमहूरियत के नाम पर एक जमात की हुकूमत है। ट्रैफिक पुलिस, पानी की फरोख्त और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जरिए सरकारी सतह पर शहरियों से भत्ता वसूल किया जा रहा है। सिंध में करप्शन को सनद का दर्जा दे दिया गया। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत और MQM पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सिंध हुकूमत पर संगीन इल्जामात लगा दिए। बहादराबाद मरकज से मुत्तसिल पार्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस में खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, तालीमी अदारों में ब्यूरोक्रेट्स लगाए जा रहे हैं। सिंध के शहरी इलाकों की यूनिवर्सिटी को ठेकों पर दिया जा रहा है। कराची में स्ट्रीट क्राइम के साथ साथ बच्चों का अगवा भी मामूल बन गया है। कराची की तालीमी इदारों को बड़े हुनर के साथ तबाह करने का आप कह रहे हैं बैरोक्रेट्स लगाए जाएंगे, क्योंकि 15 साल से ये बैरोक्रेट्स आपके पैदा करता है। 100% सिंध के बैरोक्रेट्स का ताल्लुक आपकी सियासी जमात और आपकी लिसानी इकाई से। कराची के अमन व अमन के हालात आपके आने से पहले ऐसे नहीं थे। आपके आने के बाद लियारी गैंग वॉर शुरू हुई है और आपके आने के बाद लोगों को अगवा बराए तावान की वारदातें कराची में शुरू हुई हैं। इस मौके पर मुस्तफा कमाल बोले, सिंध हुकूमत की जानिब से बिजनेस कम्युनिटी को धमकियां दी जा रही हैं। जिन बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को बुलाकर पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में बाकायदा एक तरह से थ्रेट की गई है, उनको बहुत ही सादा लफ्जों में उनको धमकी दी गई है। हमारे ज़माने में वन ऑफ द बेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रियल जोन्स थे। सड़कें, पानी, सीवरेज, हर तरह से आपको आप दिन और रात आपकी खिदमत की, और आपसे खुदा न खास्ता 1 रुपए 1 प्याली चाय भी हमने आपसे नहीं पी। मुत्तहदा पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने दावा किया कि ताजरों और सनतकारों की जमीनों पर तेजी से कब्जे हो रहे हैं। कराची का मईशत में किरदार पाकिस्तान की बका और सलामती से जुड़ा हुआ है। कैमरामैन कमर आब्दी के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। शहरी हो जाएं होशियार, महंगाई का तूफान सर उठाने को है तैयार। खुर्दनी तेल और घी की कीमतों में इजाफे का खदशा। FPCCI ने खतरे की घंटी बजा दी। सदर आतिफ इकराम बोले, पोर्ट कासिम पर 3 लाख टन पाम ऑयल फंसा हुआ है। 50 से $60 फी टन डेमरेज भी पड़ रहा है। कस्टम के नए फेसलेस सिस्टम के बाद सूरत हाल खराब हो गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। में घी और तेल महंगा होने का खतरा मंडलाने लगा। FPCCI को रमजान और मुबारक में घी और तेल की किल्लत और कीमतों में बड़े इजाफे का खदशा। FPCCI के सदर आतिफ इकराम कहते हैं, पोर्ट कासिम पर 3 लाख टन पाम ऑयल फंस गया। अगर माल जल्द क्लियर ना हुआ तो रमजान और मुबारक में घी और तेल की फी किलो कीमत में 25 से 30 रुपए इजाफा हो जाएगा। रमजान सर पे ये हमारा एक प्रॉपर सीजन है, डिमांड के दिन है, और यहाँ पे ये क्लियरेंस ना होने की वजह से शॉर्टेज क्रिएट हो गई है। अगर ये क्लियरेंस ना हुई तो शॉर्टेज और होगी और प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अगर शॉर्टेज रही 25 से 30 किलो पर केजी ये बढ़ेगा। पाकिस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के चेयरमैन शेख उमर रेहान ने कहा कि खुर्दनी तेल के जहाज क्लियर ना होने से करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। अगर 2 से 3 दिन में माल क्लियर ना हुआ तो रेट तेजी से बढ़ जाएंगे। देखिए, मैं आपको इधर से एक बता देता हूँ कि पाकिस्तान में तकरीबन आप ये समझ लें कि एक हफ्ते में 70 से 80 हज़ार टन जो एडिबल ऑयल है हम लोग पोर्ट से क्लियर करा के अपनी फैक्ट्रियों में लेके जाते हैं। तो तकरीबन पिछले 5 से 6 दिन में ये क्लियरिंग जो है वो हमारी रुकी हुई है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन 50 हज़ार टन से 60 हज़ार टन जो एडिबल ऑयल है वो फैक्ट्रियों में नहीं पहुंचा है।
तो ये एक बड़ी तशवीशनाक सूरत-ए-हाल है हमारे लिए। नायब सदर FPCCI नासिर खान बोले, पोर्ट कासिम पर पाम ऑयल क्लियर न होने के सबब इंडोनेशिया मलेशिया ने मजीद जहाज पाकिस्तान भेजने से रोक दिए। मुल्क भर में खुर्दनी तेल की सप्लाई के लिए फौरी तौर पर पुराना सिस्टम बहाल किया जाए। सूरत-ए-हाल बरकरार रही तो रमजान मुबारक में घी और तेल की किल्लत हो जाएगी। अब वहाँ से मलेशिया से और इंडोनेशिया से उन्होंने जो अभी पाकिस्तान के हालात देख रहे हैं उसकी वजह से वहाँ पे उन्होंने कार्गो रोक दिए हैं, क्योंकि ऑलरेडी इस पर काफ़ी डैमेजेस आ रहे थे और हम उनसे क्लेम कर रहे थे कि जी ये डैमेजेस हैं, तो उन्होंने अभी पीछे से माल रोक दिए। अब अगर इन केस ये माल क्लियर भी हो जाता है एक हफ्ते में, तो जो पीछे से माल आ रहा है वो काफ़ी लेट हो जाएगा, जिससे रमज़ान में इसकी बहुत बड़ी शॉर्टेज आ सकती है। बिजनेस कम्युनिटी ने रमजान से कबल अपने खदशात से आगाह कर दिया। अब देखना यह है कि हुकूमत इस हवाले से कब और क्या इकदामात करती है। अशरफ खान, सिटी 21। लियाकताबाद की कदीम करियाना मार्केट में सहूलियात का फुकदान। 500 से ज़ायद दुकानों पर मुश्तमिल मार्केट के दुकानदार टाउन इंतज़ामिया से मायूस। एसोसिएशन के सदर शाहज़ेब फारूकी का कहना है कि टाउन का अमला भारी भरकम टैक्सेस के चलान देकर दुकानदारों से नजराने वसूल करने में मसरूफ़ है। तफसीलात रिजवान अहमद की रिपोर्ट में देखिए। लियाकताबाद करियाना मार्केट का शुमार कराची की कदीम और कारोबारी लिहाज से मसरूफ़ तरीन मार्केटों में होता है। ताजिर रहनुमा शाहज़ेब फारूकी कहते हैं, लियाकताबाद टाउन की जानिब से सहूलियात सिफर हैं। ट्रेड लाइसेंस और सनशेड के टैक्सेस के नाम पर लूटमार का बाजार गर्म है। ट्रेड लाइसेंस के हवाले से हमने इनके डिपार्टमेंट को बोला कि ट्रेड लाइसेंस आप दुकानदारों से भरवा रहे हैं, उसकी कॉपियाँ भी मौजूद हैं, आप ट्रेड लाइसेंस भरवा रहे हैं दुकानदार। एक सिस्टम समझ में आया, मैनुअल उनमें लिख देते हैं किसी का 2160, किसी का 4300, किसी का 15000। ये तो एक तरीके से मैनुअल ट्रेड लाइसेंस नहीं हो रहा बल्कि रिश्वत हो रही है, जिसका किस तरह दुकानदार भरेगा। जब हम ताजिर बरादरी लियाकताबाद सबसे ज़्यादा टैक्स देता है तो उसके हवाले से उसको फैसिलिटेट भी तो करना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट करियाना मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन अजीमुद्दीन बोले, टैक्सों की मद में मनमानी जारी है, कारोबार करना मुश्किल हो गया है। ट्रेड लाइसेंस में वो मनमाना चालान बनाते हैं। वो कहते हैं हम शॉप देखेंगे और कारोबार वो अपने हिसाब से लिखते हैं, जो कि हम बताना चाहते हैं कि ये आप कम से कम इस जगह की सेल देखें। आप दुकान की पैमाइश के हिसाब से जो है चार्ज करते हैं, आप उस जगह की सेल के हवाले से बात करें कि लियाकताबाद करियाना मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है। दुकानदारी और कारोबार इस वक्त आपको पता है पूरे पाकिस्तान में बहुत परेशानी की तरफ जा रहा है, और उन हालात में भी ये इस कदर के चार्जेस इन्होंने लगाए हुए हैं कि दुकानदार कुछ कर नहीं पा रहा, सर्वाइव नहीं कर पा रहा। 20वीं सदी में कायम होने वाली लियाकताबाद की करियाना मार्केट में सहूलियात की फराहमी और टैक्स वसूली के शफाफ निज़ाम अहम ज़रूरत है। कैमरामैन इमरान AK के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। कारोबार की दुनिया से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल मंदी के बाद कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज़ तेज़ी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स 1719 पॉइंट्स के इजाफे से 1,13,206 की सतह अबूर करने में कामयाब हो गया। तफसीलात अयाज राना की रिपोर्ट में देखिए। स्टॉक मार्केट में मुसलसल मंदी के बाद तेजी का रुझान, स्टॉक मार्केट के रिवर्स घेर को ब्रेक लग गया। कारोबार के दौरान मार्केट में सरमायाकारों ने शेयर्स की खरीदारी में दिलचस्पी दिखाई, जिसके बायस मार्केट में एक बार फिर 1,13,000 की सतह पर बहाल हो गई। स्टॉक मार्केट माहिर शहरियार भट्ट का कहना है कि मार्केट में उधार की पोजीशन बहुत ज्यादा है, जिसके बायस मार्केट में प्रेशर देखा जा रहा था। अमरीकी वफ्द की पाकिस्तान में सरमायाकारी की खबरों ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल किया है। देखिए, इस हफ्ते के आगाज़ से ही हमने मार्केट में रोल ओवर के वादे तौर पे प्रेशर देखने में आ रहा है। फिर साथ साथ जो पेट्रोलियम सेक्टर की कुछ कंपनीज के रिजल्ट है वो अप टू द मार्क नहीं आए। सरमायाकारों की जो तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हो सकी, जिसकी वजह से मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग आई है। साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो लेवरेज की पोजीशन है वो रिकॉर्ड हाई के ऊपर इस वक्त 66 बिलियन के आसपास ट्रेड कर रही है। जब इतनी ज़्यादा लेवरेज की पोजीशन होती है तो अप साइड के ऊपर सेलिंग आती है। टेक्निकल कुछ इशूज़ हैं, लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं कि जहाँ मार्केट डिप साइड के ऊपर आ रही है, बहुत सारे शेयर हैं जो ओवर सोल्ड हो गए। उनके अंदर हम बाइंग देख रहे हैं, पुल बैक देख रहे हैं। मार्केट के अंदर रिकवरीज हमने कल भी विटनेस की थी, आज भी लो साइड के ऊपर हमने स्लाइटली रिकवरीज देखी हैं, पुल बैक्स देखे। कारोबार के दौरान 441 कंपनियों 48 करोड़ 39 लाख शेयर का कारोबार हुआ, जिसकी मालियत 26 अरब 10 लाख रुपए से जायद की है। कैमरामैन काशिफ के साथ अयाज राना, सिटी 21। चार्टर ऑफ डिमांड की मंजूरी में ताखीर, KTA की सौदाकार यूनियन का एहतजाज। सिविक सेंटर की इमारत मछली बाजार बन गई। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। मुतालबात मंजूर करो। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से मजदूरों का चार्टर ऑफ डिमांड मंजूर न हो सका। KTA एम्प्लॉयज यूनियन CBA की जानिब से DG के दफ्तर के सामने एहतजाज किया गया। अरकान सिंध असेंबली फरहान अंसारी और उस्मान इंजीनियर की शिरकत। बोले, चार्टर ऑफ डिमांड की अदम मंजूरी का मामला सिंध असेंबली में उठाया जाएगा। आज जो मुलाजमीन का इत्तेहाद हो रहा है और सबसे मेन जो
जो मसला है वो कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजमीन है, जिसमें 236 कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, वो कोर्ट का ऑर्डर जो है वो ऑबे करने के लिए सिंध हुकूमत तैयार नहीं है। तो ये सारे के सारे एहतजाज जो गुजर रहे हैं ये इसी की कड़ी है, और आप देख रहे हैं केडीए के हालात। तो इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे इस प्रोफाइल पे, हमें जो है सीबीआई ने यहाँ पर तलब बुलाया है और हम इनके हुकूक के लिए बात करेंगे। केडीए एम्प्लॉयज यूनियन के सदर अब्दुल मारूफ और दीगर ने कहा कि 122 नकात पर मुश्तमिल चार्टर्ड ऑफ डिमांड की मंजूरी के लिए गवर्निंग बॉडी का इजलास बुलाने में मुख्तलिफ हीले बहाने किए जा रहे हैं। इंतजामिया का मौक़िफ़ ये है कि वज़ीर बल्दियात साहब सईद गनी साहब मोहतरम केडीए नहीं आ रहे हैं और जीबी की कॉल नहीं दे रहे हैं। इंतज़ामिया ने रिक्वेस्ट की है, अभी हमने हाल में एक रिक्वेस्ट भेजी है कि आप जल्द से जल्द चार्टर ऑफ डिमांड के सिलसिले में हम जीबी बुलवाए जाए। जो मैनेजमेंट हमारी जो जिसके नेगोशिएट हमारा हुआ था केडीए की इंतज़ामिया, उसने हमें मंजूर कर लिया है, लेकिन इसके अंदर आखिरी जो मराइल है वो है गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन बल्दियात सईद गनी साहब, वो चूँकि टाइम नहीं दे रहे हैं, उसमें जो है मुसलसल टाल मटोल हो रही है। केडीए की सौदाकार यूनियन के एहतजाज के बायस मुख्तलिफ महकमों में काम बंद हो गया। पूरी इमारत एहतजाजी मुलाजमीन के नारों और खिताब से गूंजती रही। कैमरामैन इमरान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। मुतनाज़ पैका एक्ट के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का सिलसिला जारी है। कराची की सहाफ़ी बरादरी भी पैका एक्ट के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। प्रेस क्लब पर पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ राउंड टेबल का इनेकाद किया गया। सहाफ़ियों ने पैका एक्ट को काला कानून करार दे दिया। तफसीलात मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की इस रिपोर्ट में देखिए। कराची की सहाफ़ी बरादरी भी पीका एक्ट के खिलाफ सड़कों पर। मुतनाज़ा पीका एक्ट को यकसर मुस्तरद कर दिया गया। प्रेस क्लब में पीका एक्ट के खिलाफ राउंड टेबल का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ अखबारात, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मारूफ सहाफ़ियों ने शिरकत की। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से सहाफ़ियों ने पीका एक्ट तरमीमी बिल को यकसर मुस्तरद किया और कहा कि ये काला कानून है, इसको सहाफ़ी नहीं मानते। साबिक चेयरमैन मियाँ रज़ा रब्बानी ने कहा कि ट्रेड यूनियंस को रियासती इदारों ने दबा दिया, सहाफ़ियों के हुकूक सलब किए जा रहे हैं। पीका एक्ट भी काला कानून है। अगर आज आप दर हकीकत देखें तो अदारों के अंदर ट्रेड यूनियंस को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत रियासत और रियासती अदारों ने ख़त्म किया है। ये जो कानून पास हुआ ये काला कानून है। इससे जो ऑलरेडी ओवर कंट्रोल्ड सोशल मीडिया और मीडिया था उस पे मजीद कदगने लगे। कॉन्फ्रेंस में मौजूद सहाफ़ी तंजीमों के अहदेदारान ने तजवीज़ दी कि तमाम मकातब फ़िक्र को मुत्तहद करना होगा और हर सतह पर मजबूत और तवाना आवाज़ को बुलंद करना होगा। कराची प्रेस क्लब में सहाफ़ियों ने भी पीका एक्ट बिल की मुखालफत की और इसे काला कानून करार दिया। आप कुछ भी चलाएंगे, आपके खिलाफ FIA साइबर क्राइम एक्शन लेगा और आपको बंद कर देगा। फिर आप उसको साबित करते रहेंगे कि जो मैंने स्टोरी चलाई थी वो ठीक थी, नहीं थी। ये एक क्रिमिनल कानून है जिसका सारा मकसद जो सहाफ़ी कम्युनिटी है उसको काबू करना है, उसको जो है वो कंट्रोल करना है, उसकी आज़ादी सल्ब करनी है। किसी को भी किसी भी खबर उठाकर ना सिर्फ उसको उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, उसको 3 साल की कैद भी दे सकते हैं। कॉन्फ्रेंस में सीनियर सहाफ़ियों, प्रेस क्लब की गवर्नर बोर्डिंग समेत मुख्तलिफ ज़राए अबलाग से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों ने शिरकत की और पीका एक्ट पर आइंदा जद्दोजहद करने पर इत्तफाक किया। कैमरामैन रमीज़ के साथ खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। रूसी ओलंपियंस और सियाहों के शहर कायद में सैर सपाटे जारी। रूसी वफ्द ने ज़ैनब मार्केट में भी खूब खरीदारी की। रूसी वफ्द ने कराची को शॉपिंग के लिए सस्ता शहर करार दे दिया। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखी। पल और खत्ताती वाली शॉल। रूसी ओलंपियंस और सियाह भी पाकिस्तानी सकाफत के दीवाने हो गए। रूसी ओलंपियंस और सियाह मशहूर ज़ैनब मार्केट पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर खरीदारी की। किसी ने सिंधी टोपी खरीदी तो कोई रिवायती अजरक का गर्विदा निकला। रूसी खवातीन को पाकिस्तानी दुपट्टे और स्कार्फ शॉपिंग के लिए सस्ता तरीन शहर करार दे दिया और कहा कि बहुत कम पैसों में बहुत सारी चीजें खरीदी। Мне очень понравилось в этом рынке то, что я увидел много разных кожаных изделий, в том числе и сумки, и куртки, и это все делается своими руками. Можно очень хорошо поторговаться, и причем торговля может выйти плюс как и продавцу, так и самому себе. Интересная такая необычная шляпа, что еще сказать. Вот мы вдвоем такие стоим, как два красавчика с шляпами. Да, классно. Нет, достаточно дешево по сравнению с Россией, и еще можно понизить цену, и это большой плюс, это радует. रूसी वफ्द के हमरा रूसी सकाफती मरकज़ की रुकन डॉक्टर नातालिया और असिस्टेंट डायरेक्टर फरिया आकिब भी मौजूद थी। ताहम शहरियों ने मार्केट में गैर मुल्की मेहमानों को देखकर खुशी का इजहार किया। कैमरामैन शहरियार अली के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21।